Hello and welcome to Aviation Institute. A very good morning to you all, and I welcome you all to Aviation Institute's YouTube channel. So, welcome once again to Aviation Institute's YouTube channel, and you are watching Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials. So, every day we bring daily dose of vocabs based on the Hindu editorials. So I hope you are liking the sessions and you are watching it regularly. If you are an aspirant, if you are preparing for banking exams, SSC exams, railways, WBCS, UPSC, or any state level or any central level examinations, then this daily dose of vocabs are for you. Okay, you must watch this video if you want to score well, if you want to increase your stock of words. So we regularly do what? We regularly pick out 10 vocabularies, 10 important vocabs from the Hindu editorials. Okay. So as we all know, the Hindu newspaper is very essential for all of us. Okay. For all of us, Hindu newspaper is very essential, especially for those students who are preparing for any competitive examinations or any entrance examinations. For those students, for those aspirants, the Hindu newspaper is very essential. Okay, so I hope you are watching the videos regularly and you are increasing your stock of words. So we'll jump into our point of discussions today. So what is our points of discussion for today? The points of discussion for today is going to be vocabulary words based on the Hindu editorials that we do every day. Next is our word meanings. Next is our synonyms and antonyms. Next is our money idioms and phrases. So we will do a new kind of idiom today. So every day from the beginning I have been bringing different kinds of idioms. Okay, so this is very much essential for you. Idioms and phrases, there is no syllabus of idioms and phrases. Okay, so that is why you'll have to follow different kinds of idioms and phrases to get common in your to attempt the idioms and phrases in your competitive exam preparation. When you are sitting for the examination, idioms and phrases generally comes a lot. Okay, so today we'll be doing money idioms and phrases. Okay, so we'll be doing some idiomatic expressions depend on money. Okay, so without any delay, let us start the class. Okay, so our first word is contemporaneous. Contemporaneous. Okay, contemporaneous. Contemporaneous is itself an adjective. ये खुद एक adjective है जिसका meaning है आधुनिक. Okay, contemporaneous. इसको हम लोग कोवल भी कह सकते हैं, कोवल भी कह सकते हैं. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं simultaneous या फिर contemporary. Okay, it can be simultaneous or it can be contemporary. इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं different या फिर separate. Okay, how to use it in a sentence? Let's see. The contemporaneous ringing of the multiple phone lines kept the new receptionist very busy. तो साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक कॉल आ रहा था, तो उसको बोल रहा है कि कॉन्टेम्पोरानियस रिंगिंग ऑफ द मल्टीपल फ़ोन. तो एक के बाद एक मीन्स देयर वाज साइमल्टेनियस रिंगिंग, एक के बाद एक कॉल ही आ रहा था. दैट इज़ वाई इट केप्ट द न्यू रिसेप्शनिस्ट वेरी बिजी. तो न्यू रिसेप्शनिस्ट इसके वजह से बार बार कॉल आ रहा था, इसके वजह से वो बहुत बिजी थे. ओके, सो आज का हमारा पहला ईडियम जो है, जो है वो है अ डाइम अ डजन. अ डाइम अ डजन, तो ये है एक मनी ईडियम. दिस इज़ अ मनी ईडियम. So let us see the meaning of a dime a dozen. What is the meaning of a dime a dozen? A dime a dozen means common and available anywhere. A dime a dozen का मतलब होता है जो कॉमन है बहुत और जो सब जगह अवेलेबल होता है. ओके, सेंटेंस में इस ईडियम को कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं. Corrupt cops are a dime a dozen in this city.
तो इस सिटी में, इस शहर में कॉरप्ट कॉप्स जो है, कॉरप्ट कॉप्स मतलब जो पुलिस इंस्पेक्टर लोग घूस लेते हैं उनको कॉरप्ट कॉप्स कहते हैं। तो इस शहर में कॉरप्ट कॉप्स जो है वो सारे जगह अवेलेबल है, मतलब पूरा छाया हुआ है कॉरप्ट कॉप्स सब जगह। ओके, दैट इज कॉल्ड अ डाइम अ डजन इन दिस सिटी। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट vocab? Our next word is sartorial. Sartorial is itself an adjective जिसका मीनिंग है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है देखते हैं, दर्जी संबंधी। ओके, sartorial जो है ये, इसका मीनिंग होता है दर्जी संबंधी। इसको हम लोग pertaining to tailors भी कह सकते हैं। ओके, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं स्टाइलिश या फिर एलिगेंट। एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्रम्पी या फिर डम्पी। Okay, how to use it in a sentence? Let's see. Those sartorial coats made me chew the cud. Okay, तो वो जो sartorial coats थे made me chew the cud, ये chew the cud जो है ये भी एक idiom है। chew the cud मतलब I am not chewing the cud. Okay, I am not chewing, मैं चबा नहीं रही हूँ। chew the cud मतलब कुछ अच्छा होना। ओके, च्यू द कड मतलब कुछ अच्छा होना, कोई अच्छा फीडबैक पाना। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ च्यू द कड। ओके, च्यू द कड मतलब कोई कोई किसी चीज़ को च्यू नहीं कर रहा है। इट इज़ एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। ओके, इट इज़ एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। सो हाउ टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस? ये सर्टोरियल कोट्स जो बनाए गए थे, मतलब जो टेलर ने इतना अच्छा कोट बनाया था, मेड मी च्यू द कट। ओके, सो इट वॉज वेरी एलिगेंट, दैट इज़ वाई आई गॉट मेनी गुड फीडबैक्स। So what is our next vocabulary? Our next vocab is cock. कॉक जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है गहनी करना या फिर सिक्योर। ओके, कॉक मीन्स सिक्योर। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्लॉक या फिर बैरिकेड। एंटोनिम्स हो सकते हैं फ्री या फिर लूजन। So how to use it in a sentence? Let's see. Adil cocked me from a broken reed. तो अदील ने मुझे कॉक्ड किया ब्रोकन रीड से, मतलब अदील ने मुझे सिक्योर किया या फिर मुझे ब्लॉक किया एक ब्रोकन रीड से। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्यूटलरी। ट्यूटलरी ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं संरक्षित। ओके, या फिर प्रोटेक्टिंग भी कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं गार्जियन या फिर एडवाइजरी। एंटोनिम्स हो सकते हैं केयरलेस या फिर इनअटेंटिव। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? ऐसे सेंटेंस में बोल सकते हैं ही इज़ यूजिंग ट्यूटलरी फैबियन पॉलिसी इन हिज कंपनी। तो वो अपने कंपनी में ट्यूटलरी फैबियन पॉलिसी जो है वो अपना रहा है। मतलब ट्यूटलरी फैबियन पॉलिसी मतलब जो कि एक प्रोटेक्टिंग पॉलिसी है। ओके, प्रोटेक्शन करने के लिए। चलिए आ गए हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम में। तो हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है? हमारा नेक्स्ट ईडियम है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स। तो इस ईडियम का मतलब क्या है? इस ईडियम का मतलब है आस्क फॉर एडवाइस। यू आर आस्किंग फॉर एडवाइस। आस्क फॉर एडवाइस। सो अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मीनिंग है आस्क फॉर एडवाइस। हाउ टू यूज दिस ईडियम इन अ सेंटेंस? लेट्स सी. Could I have a penny for your thoughts? I don't know how to solve this problem. तो मुझे पता नहीं है ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूं, इसीलिए मैं आपसे एडवाइस मांग रही हूँ या आपसे हेल्प मांग रही हूँ। कैसे? Could I have a penny of your thoughts? मतलब कैन यू प्लीज़ हेल्प मी और वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ तो इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ कुड आई हैव अ पेनी ऑफ योर थॉट्स, जिसका मीनिंग होता है क्या आप मुझे हेल्प करेंगे, क्या आप मुझे सहायता कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वोकैब है पर्ज।
पर्ज इज इटसेल्फ अ नाउन जिसका मीनिंग है परिशोध या फिर एलिमिनेशन. ओके, सिनोनिम्स कैन बी एक्सपल्शन और एक्सटर्मिनेशन. एंटोनिम्स कैन बी कीपिंग और होल्डिंग. How to use it in a sentence? Let's see. Manoj was feeling shy of telling her about her purge from the contest. तो मनोज थोड़ा शाई हो रहे थे क्योंकि वो उस लड़की को बोल नहीं पा रहे थे. शाई ऑफ टेलिंग हर मतलब उसको बोलने से वो थोड़ा शाई हो रहे थे, बोलने से थोड़ा झिझक रहे थे कि उसको कंटेस्ट से बाहर निकाल दिया गया है या फिर वो कॉन्टेस्ट से एलिमिनेट हो चुकी है. ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्टेंस. इंसिस्टेंस इज इटसेल्फ अ नाउन जिसका मीनिंग है जोर या फिर डिमांड भी कह सकते हैं. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अर्जिंग या फिर एम्फेसिस. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं सेटिस्फैक्शन या फिर सैटायशन. Okay, so how to use it in a sentence? Let's see. We can say our insistence for luxuries should not cause a misery to anyone. तो हमारे लग्जरी के लिए जो डिमांड है हमारे, उसके वजह से किसी और को कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए. ओके, सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है निगेट. निगेट इज इटसेल्फ अ वर्ब जिसका मीनिंग है प्रतिवाद करना या फिर कॉन्ट्राडिक्ट. ओके, सो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एनिहिलेट या फिर डिसअलाउ. एंटोनिम्स हो सकते हैं अलाउ या फिर असिस्ट. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? लेट्स सी. द क्रिमिनल विल निगेट ऑल चार्जेस इफ यू फेल्ड टू प्रूव हिम गिल्टी. तो वो जो क्रिमिनल है वो निगेट कर देंगे सारे चार्जेस, निगेट कर देगा सारे चार्जेस इफ़ यू फेल टू प्रूव हिम गिल्टी. अगर आप उसको गिल्टी प्रूव करने से फेल हो गए तो वो क्रिमिनल जो है अपने ऊपर जो जो चार्जेस लगा हुआ है वो सारे वो निगेट कर देगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा. ओके, what is our next word? Let's see. Our next word is queer. Queer is itself an adjective जिसका मीनिंग है विचित्र या फिर abnormal भी कह सकते हैं. इसको सिनोनिम्स हो सकते हैं इरेटिक या फिर वियर्ड. ओके, इरेटिक या फिर वियर्ड. इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं सेंसिबल या फिर साउंड. सो हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? लेट्स सी. They are queer in behavior and extremely uncultured in their lifestyle. तो ये अपने बिहेवियर में बहुत ही इनके बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है. दे आर क्वीर इन बिहेवियर एंड एक्सट्रीमली अनकल्चर्ड इन देयर लाइफस्टाइल. और उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अनकल्चर किस्म का है. तो चलिए हमारा अगला ईडियम देखते हैं. हमारा अगला ईडियम है एन आर्म एंड अ लेग. एन आर्म एंड अ लेग. तो इसका मीनिंग क्या है? एन आर्म एंड अ लेग, इसका मीनिंग क्या है? लेट अस सी. सो इट इज़ अगेन अ मनी इडियम. इसका मीनिंग है वेरी एक्सपेंसिव. ओके, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. सो हाउ टू यूज दिस इडियम इन अ सेंटेंस? दैट न्यू कार कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग. तो ये जो नया कार है इसका कॉस्ट, मतलब हम अगर समझाना चाहे कि ये कार जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, दैट आई कांट अफोर्ड. ओके, सो टू replace, you can replace this very costly or very expensive, you can replace this with an arm and a leg. Okay, an arm and a leg means very expensive. Okay, so let's see what is our next word. Our next word is stimulate. Stimulate is itself a verb जिसका meaning है उत्तेजित करना या फिर provoke. सो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इलेट या फिर अराउज. इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं नेग्लेक्ट या फिर डिसहार्टन. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? लेट्स सी. द टीचर हैज़ टू स्टिम्युलेट द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ हंगर इन देम. तो टीचर को क्या करना पड़ा? टीचर को प्रोवोक करना पड़ा अपने स्टूडेंट्स को. क्यों? इन ऑर्डर टू क्रिएट अ हंगर इन देम. मतलब हंगर माने यहाँ पे भूख नहीं, हंगर माने यहाँ पे कुछ सीखने का भूख. ओके, टू क्रिएट अ हंगर इन देम टीचर को क्या करना पड़ा? स्टूडेंट्स को प्रोवोक करना पड़ा.
Okay, what is our last word? Our last word for today is barb. बर्ब इज इट सेल्फ अ नाउन जिसका मीनिंग है कांटा. ओके, यहाँ पे एक डॉट होना चाहिए, इट शुड बी कांटा, नॉट काटा. ओके, that is a point, or you can say synonyms can be prickle or prong. Antonyms can be kindness or praise. Okay, so how to use it in a sentence? Let's see how to use barb in a sentence. We can say watch out for barbs as they can hurt you badly. तो बार्ब से बार्ब ज़रा ध्यान में रखिएगा, बार्ब से ज़रा बच के रहिएगा, क्योंकि ये आपको बैडली हर्ट कर सकते हैं. ओके, क्योंकि ये आपको ये कांटा है, इसीलिए ये आपको प्रिक कर सकते हैं, आपको चुभ सकते हैं. सो इसीलिए कह रहे हैं कि वॉच आउट फॉर बार्ब्स. वॉच आउट फॉर बार्ब्स मीन्स you should be careful, and you should be careful from barbs as they can hurt you badly, क्योंकि ये आपको बहुत badly hurt कर सकते हैं. Okay guys, so this was our 10 vocabs for today and our 3 money idioms. So I hope it was nice, it was fun and interesting for you, and you like the video. If you like the video, so do press the like button and subscribe to our channel if you are new to our channel. And yeah, don't forget to share it with your friends who want to learn vocabs for every day who want to learn 10 new vocabs and fun interesting idioms. Okay, and yeah, don't forget to click the bell icon so that you get regular updates. Okay guys, so this was all for today. Thank you, thanks for watching.